ফাদিল হৈছিল নেকি নীটৰ প্ৰশ্নকাকত নীটৰ ফলাফল বিসংগতিক লৈ কি মন্তব্য কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰীৰ ফলাফলৰ বিসংগতিক লৈ কিয় নিমাত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী নীটৰ ফলাফলক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত হৈ আছে দেশৰ ৰাজনীতি 14 জুনত ঘোষণা হ'বলগীয়া নীটৰ ফলাফল 4 জুনত ঘোষণা হোৱাৰ পাছতেই সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ বিতৰ্ক ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত পোহৰলৈ আহিছিল নীটৰ ফলাফলৰ কেতবোৰ বিসংগতি পৰীক্ষাৰ্থীক গ্ৰেছ মাৰ্ক প্ৰদান কৰা বা একেটা চেণ্টাৰৰ পৰা কেইবাজনেও 100% নম্বৰ পোৱাৰ পাছতে চৌদিশে নীটৰ ফলাফলক কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হৈছিল সন্দেহৰ এনেকুৱা কেতবোৰ বিসংগতিৰ কথা পোহৰলৈ অহাৰ পাছতেই ফলাফলৰ তদন্ত বিচাৰি ৰাজপথত আন্দোলনত নামিছিল হাজাৰ হাজাৰ শিক্ষাৰ্থী সমান্তৰালভাৱে উচ্চতম ন্যায়ালয়তো এই সন্দৰ্ভত আবেদন দাখিল কৰিছিল কেইবাজনো লোকে উল্লেখ্য যে প্ৰথম অৱস্থাত উচ্চতম ন্যায়ালয়ত গ্ৰেছ মাৰ্কৰ সপক্ষে যুক্তি দাঙি ধৰিছিল এনটিএ অৰ্থাৎ নেশ্যনেল টেষ্টিং এজেন্সিয়ে কিন্তু আজিৰ দিনটোত উচ্চতম ন্যায়ালয়ত নিজৰ ভুল স্বীকাৰ কৰে এনটিএ নিজৰ ভুল স্বীকাৰ কৰি এনটিএ বাতিল কৰে 1563 গৰাকী গ্ৰেছ মাৰ্ক প্ৰাপ্ত শিক্ষাৰ্থীৰ গ্ৰেছ মাৰ্ক বাতিল কৰি এনটিএ এইসকল শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে ঘোষণা কৰে দুটা বিকল্প গ্ৰেছ মাৰ্ক বাতিল হোৱাসকলে ইচ্ছা কৰিলে 23 জুনত পুনৰ অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰিব পৰীক্ষাত অন্যথা গ্ৰেছ মাৰ্ক অবিহনে পোৱা নম্বৰেৰে কাউন্সেলিঙত বহিব লাগিব এইসকল শিক্ষাৰ্থী উল্লেখ্য যে নীটৰ বিসংগতি পোহৰলৈ অহাৰ পাছতেই পুনৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ দাবী জনাইছিল বিভিন্ন মহলে কিন্তু এনটিএ এই সন্দৰ্ভত উচ্চতম ন্যায়ালয়ত কয় যে সমস্যা 1563 গৰাকী শিক্ষাৰ্থীক লৈহে সৃষ্টি হৈছে গতিকে এই নিৰ্দিষ্ট শিক্ষাৰ্থীৰ গ্ৰেছ মাৰ্ক বাতিল কৰিব নেশ্যনেল টেষ্টিং এজেন্সিয়ে ইফালে এই সন্দৰ্ভত উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আবেদন দাখিলকাৰী তথা ফিজিক্সৱালাৰ সিইঅ অলেখ পাণ্ডে মন্তব্য কৰি কয় যে এনটিএৰ ভিতৰত আৰু কি বিসংগতি হৈ আছে তাৰ ওপৰতো চৰ্চা হ'ব লাগে উচ্চতম ন্যায়ালয়লৈ আহিব নোৱাৰা শিক্ষাৰ্থীৰ ক্ষেত্ৰত এনটিএৰ নতুন নিৰ্দেশনাই আঘাত হানিব বুলি মন্তব্য কৰে অলেখ পাণ্ডে उनका समय का नुकसान हुआ है उनको तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं मिला सिर्फ उन्हीं बच्चों को री नीट का एग्जाम मिल गया दूसरी बार जो माननीय हाईकोर्ट पहुंचे थे जिनका समय का नुकसान है जिनको ग्रेस नंबर तो बाकी लोग के लिए कोई विंडो नहीं खुली है तो यहाँ पे एक चीज़ है जो फेयर नहीं लग रही है दूसरी चीज़ ये लगती है कि जब एनटीए खुद एग्री कर रहा है आ जाके कि हमने 1563 स्टूडेंट्स को जो ग्रेस दिया वो पूरी तरह से सही नहीं था गलत था तो और कितनी डिस्पेरेंसीज हो सकती है उसके अंदर इसके ऊपर भी देखना चाहिए क्योंकि उन्होंने ये चीज़ बिना किसी के परमिशन के अपने आप ग्रेस नंबर का कॉन्सेप्ट लेवल ला दिया क्या पास में भी ऐसी चीज़ उन्होंने कभी की है जो कभी कोर्ट तक नहीं पहुंची है और कितना उनके डेटाबेस के अंदर ऑडिट की भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट क्योंकि वो खुद एग्री कर रहे हैं कि ये चीज़ गलत हुई और फॉर लास्ट 7 डेज वो बिल्कुल नहीं एग्री कर रहे थे बट आज उन्होंने ये चीज़ मान ली क्या काउंसलिंग इस पे मेरिट पर भी इसका असर पड़ेगा जिस तरह से 1563 हाँ बिल्कुल पड़ेगा रैंकिंग पे पड़ेगा रैंकिंग बिल्कुल री एग्जाम के बाद ही रैंकिंग डिसाइड होगी क्योंकि काउंसलिंग ये कह रहे हैं कि 6 जुलाई से करेंगे तो ये कह रहे हैं कि जब 23 जून वाला पेपर हो जाएगा जल्द से जल्द उसके रिजल्ट निकाल देंगे और उसके बाद फिर से सबकी रैंक शफल होगी बनेगा पर हमारा मुद्दा अभी भी ये कि बहुत से बच्चे अपने समय का नुकसान रिपोर्ट नहीं कर पाए इसके साथ साथ जो पेपर लीक का केस था उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि वो केस बिल्कुल खुला हुआ है उसकी अगली सुनवाई होगी और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में जजेस ने पहली बार ये भी बोला कि मान लेते हैं काउंसलिंग हो गई मान लेते हैं बच्चों का एडमिशन हो गया उसके बाद भी हमें गैप्स मिलते हैं तो सुप्रीम कोर्ट हैज ऑल द पावर्स टू रिवर्ट एवरीथिंग तो उन्होंने कहा मान लेते काउंसलिंग होती है बच्चों का एडमिशन हो गया कल को हमें कोई मुद्दा मिलता है भले ही पेपर लीक हो या कोई और डिस्पेरेंसी हो तो हमारे पास सारी पावर इन चीजों को वापस सही करने की ইফালে নীটৰ ফলাফল বিসংগতিক লৈ কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে কয় যে নীটত কোনো দুৰ্নীতি সংঘটিত হোৱা নাছিল নীটৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱাৰ অভিযোগো নাকচ শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীৰ ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ মন্তব্য 24 লাখ শিক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হোৱা পৰীক্ষাটোত কেৱল 1550 শিক্ষাৰ্থীৰ ক্ষেত্ৰতে বিতৰ্ক হৈছে দুখীক শাস্তি দিয়া হ'ব বুলি মন্তব্য কৰি শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে স্বচ্ছতা ৰাখি শিক্ষাৰ্থীসকলক ন্যায় দিবলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ বদ্ধপৰিকৰ देखिए एक तो मैं आपको स्पष्ट करूं देयर इज नो करप्शन ये जो एक वातावरण बनाई जा रही है कि बहुत बड़ा एनामोली हुई है नीट के संबंध में पिछले दिनों में नीट में आपकी जानकारी के लिए बताऊं 24 लाख स्टूडेंट्स अपियर करते हैं अभी जो मसला जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आज भी चल रहा है सरकार ने अपना पक्ष रखा है उसमें ये लगभग 1550 स्टूडेंट की है और एक ग्रेटर क्वेश्चंस कुछ उठाए गए हैं सरकार उसकी सामना करने के लिए उसको संतुष्टि के साथ बच्चों को उत्तर देने के लिए बहुत प्रामाणिकता के साथ खड़ा है
स्पेसिफिक घटना जो आए हैं उसको सरकार गंभीरता से लिया है। एकेडमिशियंस की कमेटी बनी है, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन किया है, उस हिसाब से सरकार आज कोर्ट के सामने उस पक्ष को रखेगा। और बाकी जो नीडफुल सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही कुछ साल पहले से एनटीए की गठन हुई है। पिछले दिनों में आज एनटीए लगभग 3 बड़े बड़े एग्जामिनेशन कराती है, सक्सेसफुली कराती है। ইফালে আজি নীটৰ বিসংগতিক লৈ সংবাদমেল সম্বোধন কৰি নৰেন্দ্ৰ মোদীক চোকা সমালোচনা কৰে সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে। গৌৰৱ গগৈৰ প্ৰশ্ন, পৰীক্ষা পে চৰ্চা কৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে নীটৰ বিসংগতিক লৈ কিয় মৌন হৈ আছে? শিক্ষাৰ্থীৰ সমস্যাক পিঠি দি মোদীয়ে শপত গ্ৰহণত ব্যস্ত থকা বুলিও মন্তব্য কৰে গৌৰৱ গগৈয়ে। লগতে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ পৰ্যবেক্ষণত সমগ্ৰ ঘটনাৰ উচিত তদন্ত দাবী কৰে কংগ্ৰেছৰ সাংসদগৰাকীয়ে। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम अपना संवाद वेल रखना चाहते हैं। इस समय पर आप सभी ये देख रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट में नीट को लेके जो पिटीशन जमा करी गई थी, आज उन पर सुनवाई हो रही है। इस पूरे महत्वपूर्ण विषय पर अब तक सरकार का जो रवैया रहा है उससे पूरे तरीके से कांग्रेस दुखी है और सरकार से आग्रह करती है कि वे अपने रवैये पर आत्ममंथन करें।